with chapter 6. Here, this chapter is related to quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड है बेटा, दैट आर द स्टेटमेंट सम्स. क्या है इसमें? स्टेटमेंट सम्स. अब क्वाड्रेटिक, here we will start with the first example. Find two natural numbers which differ by 3 and sum of whose squares is 170. Two natural number whose which are differ by, जब भी बच्चे डिफरेंस दे दें, at that time one is larger number, that larger number be x, let then smaller number. No बच्चे, this is for 10th class. Larger number x differ, larger minus smaller by sorry, larger minus smaller is 3. This is rough work. First condition क्या है? Differ by 3. Larger को बच्चे मैंने x ले लिया, minus smaller rough work में minus smaller is 3, x become minus and smaller minus become x बच्चे प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का. स्मॉलर नंबर क्या आ गया? देन स्मॉलर नंबर इज x minus 3. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, सम ऑफ whose squares, इन दोनों का सम मींस सम ऑफ whose squares x square plus x minus 3 whole square is given 170. Now solve it. X square, what is this? A minus b whole square. Yes, Garima. Sir, x square Yes. minus 6x. Minus 6x. Bas. Plus 9. Plus 9. A square minus 2ab plus b square. A square, x square is x square minus 2 into x into 3, 6x. Plus b square, 3 square is 9, is equal to 170. X square plus x square, 2x square, minus 6x plus 9, 117 becomes minus, is equal to 0. Now, 2x square minus 6x minus, what do we get? From here? 108. 108. 2 is common. इसको simplify करो. X square minus 3x minus 54 is equal to 0. Now 2 becomes अपॉन में चला गया बच्चे, सेम जैसे पहले 5th चैप्टर में सॉल्व किया है. 0/2 is 0. 54 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आए. यस, क्या बनेंगे बच्चे? So minus 9 and plus 6. Minus 9 and plus 6 is equal to 0. First two and last two. What is common? X is x minus 9. Next two में plus 6 common. X minus 9. एक मिनट बच्चे, बच्चे please join the class. Now x minus 9 is common and what is left? X plus 6 is equal to 0. X minus 9 is equal to 0. Yes बच्चे. सही एग्जांपल नंबर 1 है. Yes बच्चे. सर बुक में तो सर इसमें माइनस की जगह प्लस लिखा है, x plus 3 whole square. फिर उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? आंसर मैच करेगा.
ओके सर। हमने बुक को आंसर को नहीं देखना, हमने सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है। जब तुम आंसर देखना शुरू कर दोगे, सॉल्यूशन देखना शुरू कर दोगे, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू सॉल्व बाय योर मेथड एंड चेक द आंसर्स, कि आंसर्स करेक्ट हैं और नॉट। Now x minus 9 become equal to 0 and x plus 6 become equal to 0. X becomes 9 and x becomes minus 6. Minus 6 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, two natural numbers. Minus 6 is not a natural. Therefore, since minus 6 is not a natural number, this is to be rejected. क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। Therefore, larger number be x, that is 9. Therefore, larger number as a proper is equal to x is equal to 9 and smaller number क्या लेट किया था बच्चे हमने, x minus 3। देखो लॉजिक क्या पूरा प्रॉपर, तभी मैंने रफ वर्क किया था। x minus 3 means 9 minus 3, we get 6. Both are the answers, 9 and 6। यही है आंसर बच्चे। यस सर। इन्होंने लेट नेचुरल नंबर लिखा है, मैंने क्या लिखा है, लार्जर एंड स्मॉलर। ये ध्यान रखना, दोनों का डिफरेंस डिफर बाय 3। लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगा तभी 3 आएगा, स्मॉलर में से लार्जर माइनस कर देंगे तो माइनस 3 आएगा। मींस यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया है तो लार्जर माइनस स्मॉलर, रफ वर्क। स्मॉलर लार्जर को बच्चे मैंने x ले लिया, माइनस स्मॉलर एज लाइक x उस साइड चला गया, तो स्मॉलर की वैल्यू इसमें आ गई हमारे पास x minus 3। कभी भी सोल्यूशन को मत देखो। हाँ जी बेटा। सर 80Q को हम हमारे पेपर में यूज कर सकते हैं? किसको बच्चे, समझ नहीं आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना 80Q शॉर्ट फॉर्म, हम उसे अपने बोर्ड पेपर में यूज कर सकते हैं? यस श्योर, 80Q यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 2। Five times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. Find the number. 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. Same number के square से के twice से 3 less है. Find the number. Let whole number be x। According to question, क्या लिखा है बच्चे, देखो 5 टाइम a certain number, इसका 5 टाइम, that is 5x of a whole number is equal means equal to 3 less minus 3, किससे, 3 less than twice the square of the number, twice the square of number, this one, understood? सिंपल एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको अलजेब्रिकली हमने डिनोट किया है। 5 टाइम अ नंबर, नंबर इज x, उसका 5 टाइम 5x, 3 लेस इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू साइन 3 लेस, किससे 3 लेस, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, इसी नंबर के ट्वाइस स्क्वायर ऑफ ट्वाइस से। सारी टर्म्स बच्चे एक साइड पे, x स्क्वायर को भी नेगेटिव मत करना, 2x स्क्वायर, 5x उस साइड जाएगा, -5x -3 इक्वल टू 0, चाहे इस साइड लिख दो चाहे उस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, एक बार इस साइड लिख देते हैं। अभी 3 की 2s are 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 5 आए, यू कैन सॉल्व इट। -6 प्लस 1x, वेरी गुड। फर्स्ट टू लास्ट टू, 2x is common, what is left, x minus 3, 1 is common, x minus 3, x minus 3 is common, what is left, 2x plus 1, either this or this, x minus 3 equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. From here 2x is -1 and x we get -half, from here x we get 3. -half is a whole number, Khushbu? No sir. Since -half यहाँ पे proper reason देके is not a whole number,
therefore it is rejected. इसको रिजेक्ट कर देंगे. therefore whole number is, क्या लेट किया था हमने, x, तो क्या लेंगे हम, 3. that is the answer. Third example, sum of two natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2 by 15. Sum of two number is 8. दो numbers हैं, उन दोनों का sum फर्स्ट एंड सेकंड मैंने रफ में लिख दिया 8 है. फर्स्ट नंबर को बच्चे x लेट कर लें, let one number be x, then second y. no y बच्चे, देखो रफ वर्क में फिल कर रहा हूं. फर्स्ट की जगह मैंने x लिख दिया, प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8, तो सेकंड नंबर x की फॉर्म में आएगा ना. व्हाट वी गेट, x minus 8 minus x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सर difference of their reciprocals, difference of their reciprocals, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, x का रेसिप्रोकल 1 upon x माइनस 8 minus x का रेसिप्रोकल 1 upon 8 minus x इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 2 upon 15. Now you can solve by taking the LCM, then cross multiply, same as like पहले जैसे सम हमने किए हैं. x को किससे मल्टीप्लाई करें, x 8 minus x, because x is already there, 8 minus x बच गया, उसको 1 से किया 8 minus x. 8 minus x is there, x into 1 x is equal to 2 upon 15. 8 minus 2x, x को बच्चे दोनों से 8x minus x square, 2 upon 15. Now cross multiply, 15 8s are 120 minus 15 2s are 30x. 2 into 8 8x 16x minus 2 into x square 2x square. All the terms on one side, 2x square minus 30 minus 16 minus 46x आ जाएगा प्लस 120. यहां से 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई करो, इसको स्मॉलर फॉर्म में करो, उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट. यू कैन डू इट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हमें ये कैसे पता चला कि सर सेकंड नंबर छोटा है फर्स्ट नंबर से? सर हमने मतलब उसे डिफरेंस में सेकंड प्लेस पर लिखा है. सर अगर हम ऐसे लिखते 1 upon 8 minus x minus 1 upon x तो ये भी सही होता? हाँ जी बच्चे, ओके सर. वो भी सही होता है. सर हम लोग या तो यहाँ पे सेकंड, लार्जर स्मॉलर लेते, यहाँ पे हम लार्जर एंड स्मॉलर लेते तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती. ओके वह चलो सर एग्जांपल थर्ड में लार्जर, एक मिनट बेटा, एग्जांपल थर्ड को मैं अगेन सॉल्व करता हूँ लार्जर एंड स्मॉलर लेके. वही रफ वर्क, लार्जर प्लस स्मॉलर इज 8, दोनों का सम 8 है. लेट लार्जर नंबर बी x, then smaller number be, yes Garima, yes Garima. सर इसमें 8 minus 6. 8 minus x, this one. Now according to question, difference of their reciprocal is 2 upon 15. लेफ्ट साइड में गरिमा क्या आएगा, सर x और 8 minus difference of 6. their reciprocals, सर 1 by x, सॉरी 1 upon x minus 1 upon 8 minus x. 1 upon 8 minus x. बच्चे मुझे एक बात बताओ, 4 is greater than 2, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तभी मैंने वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लिया था, बट अभी तुमने पूछ ही लिया कि लार्जर एंड स्मॉलर, तो वहां पे अब 4 greater than 2 है. 1 upon 4 and 1 upon 2, which one is greater? सर 1 by 2. मींस स्मॉलर नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना. और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है ना, 2 by 15 sir. इज अ प्लस साइन. तो जब लार्जर एंड स्मॉलर लेंगे तो स्मॉलर का रेसिप्रोकल पहले आएगा, ये चीज का ध्यान रखना. ओके
इसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना एलसीएम लेके। किसी को बच्चे कोई डाउट? नहीं सर, समझ आ गया। सर तो आंसर सेम समझ आ आएगा गया? दोनों का? हाँ जी बच्चे, ओके यू कैन सर। ट्राई। नहीं आएगा तो बच्चे डाउट में पूछ लेना। अभी जो 5th चैप्टर के डाउट हैं वो बच्चे हम कल कर लेंगे, ओके? क्योंकि आज ओके पहले सर। थोड़ा सा किसी ने आना था। 4th एग्जाम्पल, this is also important one. Example number 4. For the same work, same amount of work, A takes 6 hours less than B. If together they complete the work in 13 hours 20 minutes, find how much time will B alone take to complete the work. This is the time and work के सम है बच्चे। अभी मान लो ये पूरी कॉपी मैं 4 days में फिल करता हूं, तो 1 day वर्क कितना होगा? 1/4 1/4 1/4। बच्चे एक मिनट जस्ट लिसन, जिन्होंने बच्चे अपना नाम नहीं लिखा, एक तो फ्री फायर इज द बेस्ट, मैं रिमूव कर रहा हूं, या तो अपना नाम चेंज कर लो, जो प्रॉपर नेम है वो रख लो, और एक डॉट लिखा हुआ है, और एक में रेडमी है। I will remove you or not? Are you listening? Okay. And the other is Redmi किसका है? नाम होना चाहिए बच्चे प्रॉपर। I will remove. Just wait बच्चे। कल से बच्चे जिसका भी प्रॉपर नेम नहीं होगा वो क्लास में मैं एंटर नहीं करने दूंगा उसको। Now this is a time and work sum. Here इस कॉपी को बच्चे मैं कंप्लीट करता हूं कितने टाइम में? 4 days में। तो 1 day वर्क गरिमा 1/4 1/4 टाइम Yes, एंड sir. वर्क के सम में हमें रेसिप्रोकल 1 day वर्क या 1 hour वर्क फाइंड करना होता है। अंडरस्टूड? हियर for the same amount of work, A takes 6 hours less. This is hour, not days. अभी hour नहीं है तो 1 hour work find करेंगे। A takes 6 hours less than B. तो किसके टाइम को लेट करें? B के टाइम को लेट करें कि A के टाइम को लेट करें? नो बच्चे, सर A A का टाइम, सर B को X ले लीजिए। A takes 6 hours less than B। मान लो B टाइम ले रहा है 20 hours, तो A टाइम कितना लेगा? सर 14 hours 14 hours। मतलब B का टाइम पता है तो A का टाइम निकलेगा ना। तो लेट A B की फॉर्म में है, लेट टाइम टेकन बाय B alone to do the work is equal to X hours. R is must. Then time taken by A alone to do the work. How much time? S minus 6. X minus 6 X minus 6 hour. Total together, if together, यहाँ पे बच्चे 2 लाइन्स मेंशन कर दो। B's 1 hour work. Yes, खुशबू? तो 1 upon 1/x r। खुशबू सर 1/x r। सर R आर नहीं बच्चे, वर्क है। R नहीं रहेगा। यहाँ पे Okay, पार्ट sir. आएगा बच्चे। कुणाल, बच्चे जिससे पूछूं उसी ने बोलना है प्लीज।
किसी को भी समझ नहीं आएगा ऐसे बीच में इंटरप्ट करोगे. B's 1 hour work is 1 upon x part. Then A's 1 hour work. Yes. Akshat. Anjali. B's 1 hour work is 1 upon x part. Then A's 1 hour work. Anjali. Arshia. Harshit. 1 by x minus 6. 1 upon x minus 1 6. by x minus 6. यहाँ बच्चे पार्ट, क्योंकि वर्क डन है. कितना पार्ट किया 1 आवर में? 1 अपॉन x पार्ट. ए ने कितना वर्क किया 1 आवर में? 1 अपॉन x माइनस 6 पार्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बच्चे 1 आवर वर्क को ऐड कर दो टुगेदर, ए का और बी का, दोनों को ऐड कर दिया. टोटल टाइम टेकन इज 13 hours 20 minutes. फर्स्ट ऑफ ऑल रफ वर्क में बच्चे इसको आर में कन्वर्ट करो. 13 hour है प्लस 20 मिनट. यस हर्षित, 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करो. व्हाट वी गेट? गरिमा? सर 20 डिवाइडेड बाय 60. 20 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 13 तो आर में ऑलरेडी. मिनट को बच्चे कन्वर्ट किया, कट हो गया 1/3. 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3 आ जाएगा एलसीएम लेके. यहां पे बच्चे दिस इज द टोटल टाइम टेकन टुगेदर. तो 1 आवर वर्क कितना होगा? यस गरिमा, व्हाट इज द 1 आवर वर्क? सर इन दोनों Listen. के सर वर्क को डिवाइड कर देंगे इससे शायद. नहीं बच्चे डिवाइड नहीं करना. फिर से सर देखो 3/40. 3/40 आएगा. यहां से फिर से एक बार मैं फिर से समझाता हूं. देखो बी का अलोन कितने टाइम में कर रहा है? एक्स आर में. 1 आवर वर्क टोटल टाइम एक्स आर. एक्स की वैल्यू मान लो 15 20 30 कुछ भी हो सकती है. 1 आवर वर्क क्या है? 1/x. ऐसे ही बच्चे ए का 1 आवर वर्क 1 upon x minus 6. टोटल टाइम टेकन x minus 6. अब टुगेदर मैंने क्या किया? दोनों के 1 आवर वर्क को ऐड कर दिया. तो दिस इज जो लेफ्ट साइड में है ये क्या चीज है? दैट इज टुगेदर 1 आवर वर्क. दोनों का 1 आवर का वर्क है. टोटल टाइम टेकन टुगेदर इज 40/3 hours. तो 1 आवर वर्क क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल. जैसे यहाँ पे एक्स आर का रेसिप्रोकल किया था ना 1 आवर, सेम वे टुगेदर टोटल टाइम इज दिस वन. तो 1 आवर वर्क इज 3/40. समझ आया बच्चे? यस सर. This is a time and work sum. X minus 6. देखो x is already there. X minus 6 plus x minus 6 is there. X into 1 x is 3/40. X plus x 2x minus 6. नीचे बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई x स्क्वायर minus 6x. अभी तो बहुत सम कर लिए होंगे इस टाइप के. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 42 are 80x. minus 46 are 240. 3 into x square 3x square minus 18x. सारी टर्म्स एक साइड पे. 3x square minus 18x. 80x become minus and 240 become plus is equal to 0. 3x square as like minus 18 minus 80 minus 98x plus 240 is equal to 0. अब 240 into 3 तो कॉमन 9 8 17 नहीं आ रहा. 720 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके 720 आए और लास्ट में सिंबल क्या है? ऐड. मतलब ऐड करके 98 आए. सर You can find it. -90 -8. ये तो एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है ना. 90 and 8. फर्स्ट टू एंड लास्ट टू यू कैन सॉल्व नाउ. और टाइम जो दोनों आ जाएंगे बच्चे. एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30. एक 8/3. 8/3 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 8/3 में से 6 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा. ओके हमने सर 1/8 वर्क ही क्यों निकाला है सर? टोटल को वैसे नहीं ऐड कर सकते बिना मंडे निकाले.
कैसे बच्चे? सर मतलब x प्लस x माइनस 6 ही कर देते इज इक्वल टू 40/3। सर 1D निकालना जरूरी है रेसिप्रोकल टाइम एंड करके। वर्क सम बच्चे, टाइम एंड वर्क पहले छोटी क्लासेस में आया हमारे पास। ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, टुगेदर कितने टाइम में करेंगे, तो वहां पे 1 आवर वर्क या 1 डे वर्क ही फाइंड करते हैं, उससे ही सॉल्व होगा। जैसे आप बोल रहे हो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये अच्छा, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से बच्चे हमें आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6A, फर्स्ट सम। नाउ द प्रोडक्ट of two consecutive integers is 56. Find the integers. Consecutive means, yes, Sir. Jasmine, Jasmine, Sir, continuous. continues. Let one consecutive integer be x, then second, X, या let नहीं लिखना, या then लिखना है। Yes, X plus 1. x plus 1 or x minus 1, because 5, let one number be 5, second number 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ओके, कुछ भी लेट कर लो, चाहे x minus 1 लेट कर लो, चाहे x plus 1 लेट कर लो, दैट डिपेंड अपॉन यू। मैंने x plus 1 लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस बच्चे, मैं लाइन वाइज पूछता जाऊंगा। यस आकांक्षा, आकांक्षा बच्चे बोलो। ऐसे बच्चे क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं बोलोगे तो। अक्षत, अंजलि, अर्शिया। Yes, sir. Sir, x into x plus 1 is equal to 56. सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ टू, दोनों नंबर हमारे पास हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल? 56 के। x को बच्चे दोनों से x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, 56 बिकम माइनस, इस साइड आके सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आनी 56 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आए, x स्क्वायर प्लस 8 7 8x माइनस 7x, मिडिल टर्म तो आती है ना सबको। अब Yes, sir. फर्स्ट टू लास्ट टू, x कॉमन x प्लस 8, माइनस 7 कॉमन x प्लस 8, x plus 8 and x minus 7. Either x plus 8 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. From here x we get minus 8 and from here x we get 7. Therefore, if one integer be integer है, integer positive और negative हो सकते हैं, minus 8, then second x plus 1 minus 8 plus 1, that is minus 7. Minus 8 and minus 7 is the answer. Or if one integer is 7, then second 7 plus 1, that is 8. Second answer is this one. एक पेयर बच्चे 7 and 8, sorry minus 8 and minus 7, दूसरा 7 and 8. ये दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे हमें। यहाँ नेचुरल नंबर लिखा होता क्वेश्चन में तो इसको रिजेक्ट कर देते minus 8 को, because minus 8 is not a natural number. Understood? Yes, sir. Yes. Second sum. Yes. Sum of square of two consecutive natural number. अब natural number लिखा हुआ है. Let one natural number be x. Then second. Yes, Vaishnavi. Sir, can you explain the first sum again? Okay. बच्चे क्या लिखा है? Product of two consecutive integers is 56. Consecutive means one after another, लगातार. जैसे एक नंबर मान लो सपोज कर लिया मैंने 15, तो उसका कंसेक्टिव होगा 16 या 14. 14 and 15 लगातार है, one after another, या 15 and 16. अब एक नंबर को x लेट कर लिया तो सेकंड क्या होगा? उससे नेक्स्ट x प्लस 1. वन नंबर ही प्लस 1 करके आएगा या माइनस 1 करके, मैंने प्लस 1 ले लिया.
क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब ये टू कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 56 है। x को बच्चे दोनों से x स्क्वायर प्लस x, 56 इस साइड आके माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट, दोनों में से बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट तो आती है आपको वैष्णवी? हाँ सर। यस और नो? यस सर। यस, सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट की है, फैक्टराइज की है। टू फैक्टर्स आ गए हमारे पास, आइदर दिस और दिस। x माइनस 7 को नीचे लेके जाएंगे तो x प्लस 8 जीरो के इक्वल, x प्लस 8 को जीरो के नीचे लेके जाएंगे तो x माइनस 7 जीरो के इक्वल। यहां से x की वैल्यू -8 और यहां से 7 आ गई। अब x क्या लेट किया था बच्चे हमने, वन इंटीजर, देयरफॉर वन इंटीजर -8 है तो सेकंड -8 प्लस 1 -7 आ जाएगा। वन इंटीजर 7 आया है तो सेकंड 7 प्लस 1 8 आ जाएगा बच्चे। These are the answers. Now the second sum, the sum of the square of two consecutive natural numbers. Natural numbers are there. Let one natural number be x, then consecutive natural number is, yes Khushbu? Sir, x plus 1. X plus 1. According to question Vaishnavi, sum of whose squares, उनके स्क्वायर्स से सम करके हमारे पास कितना आ रहा है 41। चलो एक साइड मैं लिख देता हूं 41, तो लेफ्ट साइड क्या आएगी वैष्णवी? नो। सिमरप्रीत, Can you repeat what you asked? sum of square of two consecutive natural numbers is 41. Sir, can I tell? Sir, x square plus x plus 1 whole square. Yes. Now you can solve this one. एक एग्जांपल भी आई थी बच्चे इस टाइप की, हो जाएगा, ट्राई कर लेना। Now the third sum. सर इसमें सर मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करनी है सेकंड सम में? सेकंड सम में यस इसको सर। बच्चे ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, x स्क्वायर सर एक a plus b whole square, x square plus 2ab 2 into x into 1 2x plus b square 1 square is 1 is equal to 41, x square plus x square 2x square plus 2x, 41 बच्चे इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1 minus 41 minus 40 is equal to 0, 2 is common, सिंप्लीफाई जितना स्मॉलर हो सकता है करो, x square plus x minus 20 is equal to 0.2, 0 बन जाएगा। अब 20 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आए, 5 and 4, 5x minus 4x minus 20, first two and last two. First two x is common, x plus 5, next two minus 4 is common, x plus 5, x plus 5 is same, यहाँ पे बच्चे मैं लिख रहा हूं, and साथ में x minus 4, either this or this, यहां से बच्चे इसको 0 के इक्वल करेंगे -5 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 आ जाएगा। -5 is not a natural number, क्वेश्चन में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, this is to be rejected, एक लाइन लिख के, since -5 is not a natural, rejected, therefore one natural number x is equal to 4 and second 4 plus 1 5. Understood? यस सर। Now we have question number 3rd. Find two natural number which differ by 5 and sum of whose square is 97. This sum you have to try it yourself, same as example number first. You do it yourself. अपने आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मुझे डाउट में पूछ लेना कल। Fourth sum. The sum of a number and its reciprocal is 4.25. Find the number. Yes, Himanshi. Sum of a number and its reciprocal. Jasmine. Sir, x plus 1 by x is equals to 4.25. सबसे पहले let number be x. नंबर लिखा है इसने
नंबर लिख लिया, कोई नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर नहीं मेंशन किया, लेट नंबर बी x। ए टी क्यू सीधा नहीं, हमने ऐसे प्रॉपर एक दो लाइनें बना के करनी। हाँ जी बच्चे बोलो अब जैस्मीन। Sir, x plus 1 by x is equals to 4.25. यस, सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि सम ऑफ अ नंबर इज x एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम का मतलब बीच में प्लस साइन। हाउ वी कैन सॉल्व? बाय टेकिंग द एलसीएम, x into x, x square plus 1, डेसिमल हटाओ बेटा, 425 upon 100, इसको बच्चे कट करो, 25 175, सॉरी 25, हाँ 175, दैट इज 7, नीचे बच्चे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x square plus 4 is equal to 17 into x, 17x. All the terms on one side, 4x square minus 17x plus 4 is equal to 0. 4 4 the 16 के फैक्टर जिनको प्लस करें 79, that is 16 and 1. फर्स्ट टू में एंड लास्ट टू में 4x कॉमन, x minus 4, नेक्स्ट टू में बच्चे -1 कॉमन, x minus 4, x minus 4 सेम वन टाइम एंड साथ में 4x minus 1, either this or this. X minus 4 equal to 0 and 4x minus 1 equal to 0. From here we get 4 and from here x 1 we by get 4. 1 by 4. Therefore number B 4 or 1 by 4, दोनों, both are the answers. Okay. Now the next sum, so easy exercise is this one. Yes. Two natural numbers differ by 3. Find the numbers if the sum of their reciprocal is 7 by 10. जहां बच्चे डिफरेंस आ जाए वहां लार्जर माइनस स्मॉलर, रफ में कितना है 3. लेट, अब मैं स्मॉलर नंबर को पहले लेट कर रहा हूं x, then larger number. Yes गरिमा? Sir, 3 plus x. Yes, very good. देखो रफ वर्क में फिल करके देख लो, x स्मॉलर जगह x फिल कर दिया क्योंकि मैंने स्मॉलर को लेट किया है, यहां से लार्जर क्या आ गया 3 plus x. अब क्या लिखा उन्होंने? इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. यस गरिमा? Sir, 1 by x plus 1 by 3 plus x equals to 7 by 10. वेरी गुड. नाउ यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. आगे बच्चे अपने आप सॉल्व करो. ओके. सिक्स सम, divide 15 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 3 by 10. Divide 15 into 2 parts. Yes खुशबू, क्या लेट करूं? Sir, let one part be x. Part B. Sir, Then second. sir, x upon 2. क्यों लिखा है बच्चे 2 से डिवाइड करने? No, sir. Sir, 1 upon तो x. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मेरे पास बच्चे 15 रुपीज हैं, मैंने गरिमा और खुशबू में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. इक्वल तो नहीं कर लिखा उन्होंने? No, sir. मेरे पास टोटल 15 रुपीज हैं, मैंने गरिमा और खुशबू में डिस्ट्रीब्यूट करनी. गरिमा को मैंने दे दिए 5 रुपीज, तो खुशबू को कितने दूंगा? Sir, 10 rupees. 10 कैसे आया? Sir, 15 minus 5. चलो गरिमा को मैंने दे दिए 8 रुपीज, तो खुशबू को कितने दूंगा? Sir, 7. गरिमा को मैंने दे दिए 12 रुपीज, खुशबू को कितने दूंगा? Sir, 3. 3. 10 7 3 पता चल गया कैसे आया? हाँ सर, सब 15 में से माइनस कर कर. गरिमा को x दे दिया,
तो खुशबू को कितने सर दूंगा? 15 माइनस एक्स, सर 15 माइनस एक्स। अब डिवाइड का मतलब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन या अपॉन नहीं है, डिवाइड का मतलब टोटल 15 है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट x है तो दूसरा क्या आएगा हमारे पास? 15 माइनस x। अंडरस्टूड बेटा? सबको समझ आ गया? यस सर। Yes. Yes. And such that sum of their reciprocals. Yes. क्या इक्वेशन बनेगी खुशबू? सर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 10। यू कैन सॉल्व नाउ। इसके Yes, बाद sir. बच्चे अपने आप ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत सम कर लिए 5th चैप्टर में हमने इस टाइप के। 7 सम, मतलब मेरी कोशिश ये है अब कि मैं सिर्फ यहां तक सॉल्व करूं, आगे तुम खुद सॉल्व करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट ही करनी है, इसके बाद एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर। जितना बच्चे खुद करोगे उतना ज्यादा आएगा। नाउ वी हैव 7 सम। The sum of the square of two positive integer is 208. This is different one. Sum of square of two positive integer is 208 if the square of larger number is 18 times the smaller. देखो first condition क्या है? Sum of square of larger square plus smaller square is given 208. रफ में मैंने लिख दिया sum of the square of two number, larger square plus smaller, 208. Is the square of their larger number, square of larger, L square, is means equal 18 times the smaller, 18s, not the square of smaller. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। Square of larger number is 18 times the smaller number, only s, not square. इस टाइप के सम में हमें लार्जर और स्मॉलर दोनों को लेट करना पड़ेगा। लेट लार्जर नंबर बी x, लेट स्मॉलर नंबर बी y। Y. फर्स्ट कंडीशन यहां पे फिल कर दो। फर्स्ट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 208, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन जैस्मीन क्या बनेगी? Sir, x square minus 18y. x स्क्वायर इज इक्वल टू 18y। सिंपल बच्चे, इसमें फिल कर, इस साइड मत लेके आ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 18y, दिस इज टेकन एज सेकंड इक्वेशन। ये देखो, दिस इज आल्सो x स्क्वायर, दिस इज आल्सो x स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखना कैसे है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ x square in equation first. x square के प्लेस पे 18y प्लस y square is 208. स्टैंडर्ड फॉर्म y square 18y पहले 208 माइनस इज इक्वल टू 0। 208 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 18 आए। यस, क्या बनेंगे? सोचो। Sir, 26x minus 8x. 26x माइनस x नहीं है बच्चे, y। Sir, 26. इक्वेशन y की फॉर्म में, तो Minus y 8y. आएगा साथ में। ओके, सही है ना? क्योंकि मैं देख नहीं रहा। 8 6 48 4 12 4 16। सही है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टू में बच्चे -8 कॉमन, y plus 26. From here y we get y plus 26 and y minus 8. Either this or this. Y plus 26 is equal to 0 and y minus 8 is equal to 0. From here y we get -26 and from here y we get 8. अब y की वैल्यू -26 and 8, दो आंसर्स हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चे? सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x square is equal to 18y. 18y, y की वैल्यू -26। x जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट होगा। 18 को 26 से मल्टीप्लाई करो। 8 6 48 4 16 plus 6 22 plus 4 26 2
2 plus 468 minus 468 रूट में आ रहा है. दिस इज रियल. खुशी सर हम -26 को रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो नेगेटिव में है ऐसे और यहाँ सीधा पर नहीं कर बोल सकते बेटा, सीधा नहीं कर सकते. तो यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा है minus सम ऑफ 20. स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके चलो फिर तो सीधा कर देंगे. वैसे ना लिखा होता बच्चे, 2 नंबर्स लिखा होता अकेला, पॉजिटिव ना लिखा होता तो हमें इस वे से करना पड़ता. -468 के अंदर आ रहा है. दिस इज नॉट रियल, नॉन रियल नंबर है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. इस टाइप से करना था. पॉजिटिव ना लिखा होता क्वेश्चन के अंदर. अब y8 फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, सेकंड इक्वेशन में सॉरी. y स्क्वायर इज 18 into 8, 8 8 is 64, 6 8 6 14 x square, and x we get root 144. x is 12. एक इंटीजर 8 आ गया और सेकंड इंटीजर 12 आ गया. ठीक है खुशबू, एक्सक्यूज मी सही है? सर. एक मिनट, मैंने यस या नो पूछा है, सही है कि गलत है? सर सही है. खुशबू नहीं सब एक्स की सही है. सर सही है सर. गरिमा मिस्टेक है बेटा एक छोटी सी. सर सब कोई बता प्लस सकता है? प्लस माइनस. हाँ जी, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये. प्लस माइनस 12 एंड -12. -12 इज टू बी रिजेक्टेड. सीधा नहीं हम यहाँ पे छोड़ सकते, प्लस माइनस आएगा ही आएगा. मतलब दिमाग में बिठा लो कि जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो प्लस माइनस लगाना ही लगाना है, चाहे रिजेक्ट हो जाए केस, बट लगाना ही पड़ेगा. देयरफॉर लार्जर नंबर 12 एंड स्मॉलर नंबर 8. अंडरस्टूड? कर लोगे इसको? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. That is so simple. Sum of square of two consecutive positive even integer. Sum of square of two consecutive even integer is 52. Find the numbers. Yes. Snehal. Let's one consecutive even number be x. Then second क्या आएगा? x plus x 2. plus 2. स्नेहल किसका नाम है? मुझे जिससे पूछूं प्लीज सिर्फ उसी ने बोलना है, अदरवाइज किसी को भी समझ नहीं आए. अंडरस्टूड? नाउ सेकंड नंबर. Yes, sir. यस स्नेहल. x plus 2. इवन देखो, मान लो एक सपोज मैंने नंबर 8 सपोज कर लिया इवन है, तो नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है इससे? 10. दैट इज 8 plus 2 है. तो एक नंबर x है तो दूसरा x plus 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 52. सम बीच में प्लस साइन, इसका सम ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. Now you can solve it yourself. आगे अपने आप सॉल्व करो. 9th sum. Find two consecutive positive odd numbers. Let one odd number be x. Then second. Yes, Garima. x plus 1. बच्चे एक नंबर 7 है, odd number. इससे नेक्स्ट odd number क्या है? 7 plus 1. गरिमा. सर x plus 2. यस, जैसे इवन था सेम टू सेम. 7 के बाद ऑड नंबर 7 plus 2 दैट इज 9. अंडरस्टूड? नॉट 1. कंसेक्टिव लिखा होता, इंटीजर लिखा होता तो x एंड x plus 1, या नेचुरल नंबर लिखा होता, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर. कंसेक्टिव ऑड लिख दिया इन्होंने. टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, एक x तो दूसरा x plus 2. जैसे इवन था, इवन में भी x एंड x plus 2, ऑड में भी x एंड x plus 2. सम ऑफ whose square is 74. According to question, x का square plus x plus 2 का square is 74. इसको भी बच्चे आगे अपने आप सॉल्व करोगे. Now we have question number 10.
the denominator of a positive fraction is 1 more than twice the numerator. If the sum of fraction and its reciprocal is 2.9, find the fraction. Yes, खुशी किसको लेट करें, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को? सर न्यूमरेटर. यस, देखो डिनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर की फॉर्म में गिवन है. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फिर से मैं रीड कर रहा हूं. डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. Let numerator be x. Then denominator खुशी क्या आएगा? 1 more than 1. सर 2x plus 1 क्योंकि 1 more than twice है. 1 more plus 1 किसके? Twice the numerators. Yes sir. Understood? सबको समझ आ गया बच्चे? Denominator of a positive fraction is 1 more than twice the numerator. Then fraction खुशी fraction क्या आएगी? So x Yes, Khushi. upon 2x plus 1. Yes. According to question, खुशी बताओ बच्चे क्या? Sum of fraction and its reciprocal is 2.9. Right hand Yes, side sir. में लिख देता So- हूँ 2.9. सबसे Yes, पहले तो बोलो। वही x upon 2x plus 1 और फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x plus 1 upon x. 2x इन plus दोनों का 1 सम upon x. बोला है बच्चों ने, इसमें प्लस साइन. Yes. 2.9 को इस लेफ्ट साइड में एलसीएम आ जाएगा बच्चे 2x plus 1 and x दोनों. 2x plus 1 is there, x into x square. x is there, 2x plus 1 whole square. इस साइड बच्चे 2.9 29/10. इसको 29 बच्चे सॉल्व करो. You can solve it. उसके बाद क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिट. Now we have question number 11. Three positive numbers are in the ratio 1:2, 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4. Find the number if sum of their squares is 244. Yes, क्या करें बच्चे? तो सारे नंबर्स को अलग अलग लेट. क्या करेंगे? लेट बोलो. सिक्स एक्स 4x 3x. बच्चे या तो एक चीज है कि इनका एलसीएम लेके जो कॉमन चीज होती है रेशो में वो खत्म हो जाती है, या दूसरा तरीका क्या है, लेट वन नंबर भी x/2, 1/2 था ना, x/2, सेकंड नंबर भी x/3 एंड थर्ड नंबर भी, दैट इज सो इजी, x/4. अंडरस्टूड? सेम x को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट नंबर x/2, सेकंड x/3, थर्ड x/4. According to question, simple language, number sum of their squares. इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर प्लस x/4 का स्क्वायर. इसके इक्वल गिवन है हमें 244. स्क्वायर ओपन करो, x²/4, x²/9, x²/16 is 244. तीनों का बच्चे एलसीएम ले लो. क्या आएगा? आई थिंक 144 आएगा. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 144 आ जाए? 4 3 12 24 6 36 x स्क्वायर. 9 को किससे करें 144? 16 into x square, 16x square. 16 को किससे मल्टीप्लाई करें 144? 9 into x square, 9x square. 244. 36 plus 16, 52 plus 9, 61x square is equal to 244 into 144. अब x square 244 into 144, 61 बच्चे नीचे चला गया. आई थिंक प्रॉपर पूरा कट हो रहा है 4 पे.
x is equal to square root of 4 into 144 बाहर प्लस माइनस, चाहे तो इसको बच्चे इस साइड ले आओ, दोनों को फैक्टराइजेशन से करके कर दो, चाहे ऐसे कर दो, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 12 144 का 12, x is 12 2s are 24, एक x की वैल्यू क्या आ गई 24 और दूसरी -24। पॉजिटिव नंबर बोला था, दिस इज टू बी रिजेक्टेड। तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर बी x by 2 था बेटा, 24 by 2 that is 12। सेकंड नंबर x by 3 24 upon 3 that is 8, and third number is x by 4 that is 24 by 4, कितना आ गया 6। तो तीनों नंबर आ गए हमारे पास 12 8 and 6। आगे बच्चे समझ Yes, sir. लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. Now we have 12 sum. Divide 20 into 2 parts such that the 3 times the square of one part exceed the other part by 10. Divide 20 into 2 parts. Yes, Khushbu. Let one part be Sir. x. Yes, Then sir. second. Sir, 20 minus x. Yes. समझ आ गया ना बच्चे सबको कि 20 minus Yes, x कैसे आया? Yes, sir. गरिमा, जैस्मीन, sir. खुशी, Yes, sir. सिमरप्रीत, स्नेहल, वैष्णवी। One number x, second number 20 minus x. According to question. Yes, Garima. Yes, sir. Equation बनाओ बेटा। Sir, चलो तेरी हेल्प कर देता हूँ, राइट साइड में लिख देता हूँ 10। sir, 3x square Yes, sir. equals to 20 minus x plus 10. ओके। फिर से बोलना। 3x square देखो such that 3 times the square of 1, 3x square, 1 का square करके उसका 3 times exceed the other part by 10 is equal to bracket 20 minus x plus 10. हाँ, यहाँ पे स्केयर नहीं बोला उसने, दूसरे पार्ट से 10 ज्यादा है, इसका 3 टाइम फर्स्ट नंबर का जो स्केयर है उसका 3 टाइम्स दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। 3x स्केयर x इस साइड आगे sir. प्लस हो गया। हाँ जी बच्चे, सर exceeds का मतलब क्या होगा यहाँ पर? किसका बच्चे? Sir, exceeds the other part by 10. किसका मतलब? Sir, exceeds the Exceed other means part ज्यादा। by 10. अब तुम्हारे पास, हाँ जी बच्चे, एक्सीड मींस ज्यादा। मेरे पास 10 रुपये एक्सीड है तेरे से, तेरे पास 50 है तो मेरे पास कितने होंगे? Sir, 60. 60। 10 रुपीज ज्यादा, एक्सीड्स मींस ज्यादा, मोर। ओके, Okay, sir. अंडरस्टूड? Yes. अब इन्होंने क्या लिखा था क्वेश्चन में? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1, एक्सीड ज्यादा है ये किससे? दूसरे नंबर से 10, तो दूसरे नंबर में 10 ऐड करेंगे तभी इक्वल आएगा। मेरे पास 60 है, तेरे पास 50 है, मेरे पास 10 रुपीज ज्यादा है ना, तो 50 में ऐड करेंगे तभी इक्वल होगा। Yes, sir. Yes. या वही चीज यहाँ पे बोली उन्होंने, कहते वन पार्ट है जो उसका स्क्वायर का 3 टाइम्स ज्यादा है, एक्सीड है किससे? दूसरे नंबर से 10, तो दूसरे नंबर में 10 ऐड कर दिया। सारी टर्म्स एक साइड पे 20 + 1 30, इस साइड आगे -30, 33 या 90 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें x 1 आए। Sir, 10 and 9. 10x minus 9x. 10 and 9. Now you can solve, आगे सॉल्व कर लोगे ना? एनफ है बेटा आज के लिए, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। Yes, sir. You have to do examples plus first 12 sums. Okay? Doubts Okay, के sir. 5th चैप्टर के हम कल कर लेंगे। Okay, sir. ओके बेटा, बाय। Tomorrow sir. the class will be at 7 or 7:30. मॉर्निंग बच्चे किसी का स्कूल लग रहा है अभी? Yes, No, sir. sir. No, sir. Yes,
No, sir. मॉर्निंग कितने बजे है जैस्मीन? सर 9 o'clock। ऑनलाइन और ऑफलाइन? सर अभी तो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही है, फिर तो मतलब 8 o'clock लगा सकती है क्लास। यस सर। पक्का? यस सर। उठ तो जाती है, मुझे पता है अब तुम। यस चलो मॉर्निंग में बच्चे हम क्लास लगाएंगे 8 o'clock। ओके, ओके सर। मुझे ये है सिलेबस थोड़ा सा मतलब 4-5 चैप्टर जल्दी हो जाएं तो क्लास से आगे हो जाएंगे, स्कूल से आगे हो जाएंगे। ओके बाय, सी यू मेरे टुमारो। स्कूल खड़े हैं। किसके? अर्शिया के? हेलो Yes, sir. Yes, sir. बच्चे फिर क्या करें? कल छोड़ो, फिर कल इवनिंग ही लगाएंगे, कोई बात नहीं, इवनिंग ज्यादा टाइम लगा लेंगे 7 o'clock। ओके Okay, sir. ओके बेटा, बाय। Bye, sir.